Okay. Good morning, friends. Today we are going to revise a very important lesson from our supplementary reader Vistas. That is Evans tries an O level. It's a very long story and one of the longest stories in our book from the two prescribed books. And this is very important, riveting story, interesting story in which there is a battle of the wits between you can say a jailbreaker who escapes the jail again and again, and there is a very intelligent governor of the jail. So this battle ultimately is won by the Evans, the breaker. But let's see how he manages to escape the jail and what are the techniques employed by Evans. So as I told you, Evans was a very small kind of thief. The term he used in the chapter is kleptomaniac. Evans was a kleptomaniac. What is the meaning of kleptomaniac? Kleptomaniac means a small kind of thief who cannot resist himself, cannot stop himself from stealing petty things, small things. छोटा मोटा चोरी करता है. But there is a kind of psychological problem. Yes? Yes, psychological, he cannot resist himself. So, but it is not that he has murdered someone or something like that. But he has been kept in the one of the most secure jail because he has escaped from jails many times. बहुत बार निकल चुका है. That's why उसको HM prison Oxford. This is the map you can see. HM prison Oxford में उसको रखा गया. And another reason why he has been kept in this jail is that ये नॉर्दर्न पार्ट में, ये ऑक्सफोर्ड टाउन का नॉर्दर्न साइड में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था. वहाँ का जेल इज बीइंग रिपेयर्ड, तो उसको वहाँ से शिफ्ट किया गया था एचएम प्रिजन ऑक्सफोर्ड. एंड द गवर्नर, उसका हेड को बोलते हैं गवर्नर, एंड द गवर्नर हैड द चैलेंज टू कन्फाइन दिस पर्सन हु हैज ब्रोकन जेल्स मेनी टाइम इन द जेल, जो जेल में बहुत बार भाग चुका है. सो इट बिकेम ए मैटर ऑफ respect and keeping the name and fame of the HM prison. HM prison का name and fame की बात है. कितना बड़ा सिक्योर जेल से कैसे निकल जाएगा सपोज निकल जाता है एक prison, then it will bring bad reputation. So his reputation was in stake. So he was kept in this prison, and in this prison there was a very secure block, and that is known as DV. So this prison Evans was kept in the DV. So this is the actually backdrop of the story. लेकिन स्टोरी कहाँ से शुरू होता है? Listen, स्टोरी कहाँ से शुरू होता है? The story as given in the books starts. The governor of HM prison calls the exam board secretary. HM prison ऑक्सफोर्ड का गवर्नर फोन करता है किसको? एग्जाम सेक्रेटरी. फॉर व्हाट? बिकॉज one of the prisoners in their jail, whose name is Evans, has taken or chosen to learn German. O level is ordinary level. A level मतलब advanced level. Ordinary level वो choose किया है. And he wants to appear for the examination. और कोर्स ले रहा है सितंबर महीने से उस साल, and that particular year, and the exam is scheduled on 7th June. So to fix the exam center and how the examination will be conducted, he calls to the exam board of examination secretary, and then secretary and HM prison का governor जो है they discuss a lot many things, and the exam secretary also asked about the personal details of Evans, and he tells him that he is not that kind of a thief, or he has not done something that should be worrisome or problematic. Only his problem is that he is just a kleptomaniac. Otherwise he is a fine man. He didn't think it useful to give further detail. ज़्यादा डिटेल नहीं देता, चलता I will manage. So the examination center is fixed in his cell where Evans is confined. जिस सेल में रहता है डी विंग में, उसी सेल में एग्जाम होगा. एंड क्या होता है? एक पर्सन है, whose name is McLeary.
मैक्लिरी एक पर्सन है चर्च में काम करने वाला. He is engaged to be the invigilator for the particular exam. Not talking there. तो एंगेज किसको करते हैं? मैक्लिरी को. और रहता कहाँ है मैक्लिरी? यहाँ रहता है. ये मैक्लिरी का ब्रॉड स्ट्रीट कहाँ रहता है? ब्रॉड स्ट्रीट इन द सेम टाउन. ऑक्सफोर्ड टाउन में ब्रॉड स्ट्रीट में उसको एंगेजमेंट दिया जाता है that person will come on that particular day 7th June and become the and observe the exam or become the invigilator of the examination. कब होता है? 7th June को. लेकिन 7th June के पहले इवनिंग, उसके पहले इवनिंग 8:30 PM में उसका जो जर्मन का जो ट्यूटर रहता है, जेल में पढ़ रहा था, मींस ही नॉट लर्निंग बाय हिमसेल्फ, एक ट्यूटर आता है उसको पढ़ाता है. तो उसको बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए, वेल विश करने के लिए उसके पहले इवनिंग 8:30 PM में आता है. वो कहां से आता है? टेक्निकल कॉलेज. ये बाद में ये इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज़ इन टेक्निकल कॉलेज का जो जिसको ये जो आता है पढ़ाने के लिए, इसका सब सेटिंग है, बाद में पता चला रिवील होगा बाद में लास्ट में. तो टेक्निकल कॉलेज से आता है और पता है क्या क्या करना है. ही गिव्स सम टिप्स एंड से विशेस ऑल द बेस्ट और निकल जाता है. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग द एग्जामिनेशन डेट June 7 8:30 AM में दो प्रिजन ऑफिसर को गवर्नर चार्ज देते हैं. एंड द जैक्सन इज वेरी सीनियर वन. जैक्सन जो है ये सीनियर है, काफी एक्सपीरियंस है. एंड स्टीफेंस से प्रेशर है, न्यू है. ये दो जैक्सन और स्टीफेंस को मुलाकात कराते हैं. किसको तुम गार्डिंग करना है, किसको कहाँ रखना है. जैक्सन रहता है बाहर वाला गेट में, फ्रंट गेट में जो फ्रंट गेट है, और ये अंदर का सेल के सामने जो होता है उसमें जूनियर वाला है स्टीफेंस, वो रहता है. वैसे ये दोनों एंगेज करते जाता है. समझ रहे हैं? एग्जामिनेशन स्टार्ट होना है किस टाइम में? ये टाइम 9:15 में एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है. एंड दिस मैक्लिरी द इन्विजिलेटर अपने ब्रॉड स्ट्रीट से आते हैं. कारफाक्स एक स्क्वायर है, कारफाक्स से आके टाइम पे से 15 मिनट्स पहले पहुंच जाते हैं 8:45 में. ठीक है, सॉरी 8:40 निकल जाते हैं एंड रीचेस बिफोर टाइम. 9:12 में गवर्नर इनको फिर से इंस्ट्रक्शन देना देता है व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. आई मीन व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू एंड रिमाइंड्स हिम again and again that they should not be what they should not actually ignore all these activities, and they should keep a close watch to the activities of Evans ताकि वो निकल ना जाए. ठीक है, लेनियंसी के लिए वो मना करता है. और एवरी क्वेश्चन वो करता है इवन लिसन. दिस इज द गवर्नर सेल and from governor sir he walks the cells with audio mic लगाता है. कैमरा नहीं था, मैं भी ऑडियो लगाता है कि हाँ जो भी बातचीत होगी he will be listening there गवर्नर. तो इतना टाइट सिक्योरिटी में. एंड अगेन 9:15 शेड्यूल टाइम है, लेकिन 9:12 में गवर्नर इंस्ट्रक्ट देता है कि जो मैक्लिरी आया है उसको भी फ्रिस्किंग करो, उसको भी मत छोड़ो. मैं भी he will be carrying some weapons or something which Evans may use and make him hostage. उसको बंधक बना लेगा. एंड देन बंधक बनाने के बाद क्या करेगा? वो निकल जाएगा. So at 9:12 AM on the examination date, no talking there, no talking. Yes, at 9:12 उसका फ्रिस्किंग होता है. किसका? मैक्लिरी का, द इन्विजिलेटर. और इन्विजिलेटर ने क्या लेके आया है? एक सूटकेस लाया है. एंड इन द सूटकेस सूटकेस में क्या है? देयर इज ए न्यूज़पेपर. देयर आर सम बुक्स आफ्टर रीडिंग व्हिच ही इज गोइंग टू गिव ए स्पीच समवेयर. एंड ए पेपर कटर नाइफ है. एंड अनदर ट्यूब. लिसन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक ट्यूब लेके आता है, रबर ट्यूब. उसमें कुछ लिक्विड जैसा फील है. तो ये जो फ्रिस्किंग करता है, लिसन, फ्रिस्किंग करता है स्टीफेंस, तो पता चलता है कि ये एक रॉबर है. पूछता है मजाक में, तो इसको क्या करना है, व्हाट वुड यू डू विद दिस. वो कुछ अलग से सोच बैठता है. ठीक है, मजाक बनाता है. बट ये बोलता है, मैक्लिरी बोलता है, इट्स नॉट सो, आई सफर फ्रॉम हेमोरेज. एक पाइल्स होता है मेरे को, तो मैं इसको लेके बैठता हूँ, अदरवाइज मेरे को प्रॉब्लम हो जाता है. सो आई हैव ब्रॉट दिस ट्यूब
फॉर सिटिंग ऑन, मैं इसको बैठने के लिए लाया हूँ। ओके बोलता है एंड देन उसका जो नाइफ निकला है पेपर कट करने के नाइफ कटर उसको ले लेते हैं और जो भी चीज रिलेवेंट उसको ले लेते हैं एंड ही वाज अलाउड टू एंटर द शेल ऑफ इवांस। एंड नाउ लेट्स कम टू डिस्कस कि मैक्लेरी क्या ड्रेस पहन के आता है। कमिंग मैक्लेरी इज वेयरिंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ हैट, एक हैट पहना होता है, एक लॉन्ग कोट पहन के आता है और बाद में पता चला कि वो डोर कोट पहन के आता है एंड दे मिस्ड एक्चुअली, उनको पता नहीं था कि डबल कोट पहन के आया था और लंबा दाढ़ी वाला है उसका, एक चश्मा पहन के आया है, ये उसका ड्रेस है, इसका मैक्लेरी का रिलेटेड। और बाद में पता चला कि मैक्लेरी एक्चुअली वाज इन्वॉल्वड in the entire procedure of Evans escaping the jail. ठीक है? So listen, 9:15 at the settled examination time, the exam couldn't start. Exam start नहीं हो पाया। ये प्रिस्क्रिप्शन हो गया, ये सब चेकिंग के टाइम से क्या हो गया? एग्जाम स्टार्टेड है 9:50 PM, 10 मिनट का लेट हो जाता है। And when the examination starts at 9:25 AM, ये बाहर से 15 मिनट बाद एक कॉल आता है। एक्चुअली द कॉल हुआ भी इवांस के लोगों के द्वारा होता है। कॉल आता है और कॉल में बोलता है कि आई एम असिस्टेंट सेक्रेटरी, पहले बातचीत हुई सेक्रेटरी से, कॉल आता है बोलता है कि मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी बोला हूँ गवर्नर को। गवर्नर बोलता है अभी क्या काम है? तो असिस्टेंट सेक्रेटरी इन्फॉर्म्स हिम दैट एक्चुअली जो एग्जामिनेशन का पैकेट है, क्वेश्चन पैकेट एक करेक्शन स्लिप इज मिसिंग, क्वेश्चन में कुछ गलत है पेज नंबर 3 में एंड करेक्शन स्लिप अलग जगह दे दिया है एंड मैं रिमाइंड कर रहा हूं कि आप अगर करेक्शन स्लिप नहीं देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, किसी ने गलती से उसको करेक्शन स्लिप देना भूल गया। ओके, तो गवर्नर को थोड़ा डाउट लगता है इसे कैसे अगर कॉल बैक करना चाहता है, ही थिंक्स दैट इट माइट बी अ फेक कॉल, लेकिन कॉल अनगे जाता है तो फिर सोचता है चलो मैं क्या ज्यादा करेक्शन स्लिप भी तो है, नो मैटर, वो एलो कर देता है, करेक्शन स्लिप जाता है एंड करेक्शन स्लिप को में कुछ इंफॉर्मेशन भी होता है, लेकिन एक्चुअल पर्पस जो है ये इसका द कॉल व्हिच केम एट 9:40 AM, 15 मिनट बाद, एक क्वार्टर ऑफ एन आवर, 15 मिनट बाद जो कॉल आता है वो एक्चुअली उधर से इवांस के लोग जानना चाहते कि एग्जाम एग्जैक्टली कब स्टार्ट हुआ और 3 आवर्स के बाद कब खत्म होगा। दैट्स व्हाट टू असर्टेन, वो पूछते हैं कि एग्जाम शुरू हो गया, तो गवर्नर बोलता है कि यस एग्जाम शुरू हो गया, 15 मिनट पहले शुरू हो गया, तो उनको पता चल जाता है कि एक्चुअली एग्जाम 9:15 में नहीं हुआ, 9:25 में शुरू हुआ है, टाइम जो असर्टेन करने के लिए पूछते हैं। फिर 9:45 में और 5 मिनट और एक कॉल आता है, वो कहां से आता है? कहीं मजिस्ट्रेट से कॉल आता है, कोर्ट से, एंड ही आस्क्ड फॉर ए पुलिस वैन। वो क्या मांगता है? गवर्नर सर हमको एक पुलिस वैन दे दीजिए और कुछ प्रिजन ऑफिसर दे दीजिए, एक केस है जिसके लिए हमको कुछ लोगों को कन्विक्ट को लेना है, कोर्ट को लेना है, तो हमको पुलिस वैन चाहिए, कुछ प्रिजन ऑफिसर। ज्यादा सोच विचार नहीं करता, मजिस्ट्रेट को दे देता है क्या? एक वैन और कुछ पुलिसमैन को दे देता है, और वो भी इवांस का प्लान ही था। एक्चुअली मजिस्ट्रेट कोई नहीं था, ओरिजिनल था नहीं, उनको एक वैन चाहिए था, बाद में जरूरत पड़ेगा पता चलेगा। सो एग्जाम इज गोइंग ऑन, बीच-बीच में गवर्नर जो है ऑडियो से सुनता रहता है बातचीत क्या हो रहा है, एंड ये जो इवांस हैं और मैक्लेरी हैं दोनों एक टेबल पे आमने सामने बैठे हैं। एक इवांस को कुछ नहीं आ रहा है, ही जस्ट लुकिंग आउटसाइड, तो दरवाजा बंद भी है लेकिन उस तरफ देख रहा है कुछ हेल्प मिलेगा। एंड द वन हु इज स्टैंडिंग जस्ट आउटसाइड द सेल इज डिफेंस जूनियर प्रिजन ऑफिसर, वो भी 1 घंटा तक हर एक मिनट में दिखता है, फिर उसको लगता है कि सर कुछ तो है नहीं, एग्जाम भी लिखना है, उसको आ ही नहीं रहा, मैं क्यों देखूं, फिर ही स्टार्ट्स पीपिंग एवरी 2 मिनट में, फिर 1 घंटे के बाद बोलता कितना देखूंगा, वो भी थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, लेनियन हो जाता है, कैसे हो जाता है, देखना बंद करता है। एंड ये जो शहर में जो बातचीत हो रही है, गवर्नर भी कभी कभी सुनते हैं टॉकिंग, कभी इसको रिक्वेस्ट करता है इवांस की मुझे ठंड लग रही है, मुझे ब्लैंकेट चाहिए, हाँ हेलो करता है, ये सब चीज सुन रहा है, तो उसको भी लगता है कि नॉर्मली सब एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, नो प्रॉब्लम। अब इससे पहले एक बात हुआ था, एग्जाम से शुरू होने से पहले इवांस को बोला गया था कि अपना जो शेविंग चेहरा है उसका स्क्रॉपी हो गया, फिर शेविंग कर लेता है, लेकिन उसको बोलते हैं अपना टोपी हटा दो, वो बोलता है नो दिस राउंड
राउंड बॉल है कि टाइप का, इसको मेरा लॉकी है, मैं नहीं निकालूंगा, लेकिन एक्चुअली हेयर स्टाइल बदल दिया होता है, उसको दिखाना नहीं चाहता है, एक्चुअली काट दिया था होता है, इसलिए वो नहीं हटाता है, ताकि वो अपना लुक बदलना चाहता है, दैट्स व्हाई वो ट्रिम करके छोटा छोटा काट दिया है। एनीवे सेविंग कर लेता है, ठीक है, सेविंग कर लेता है, बाल छोटा करके टोपी हटाता नहीं है, पहना रहता है। तो क्या हो गया 9:45 AM के बाद 10:20 तक एग्जाम सही चलता है, ठीक है। 10:20 में एग्जाम और 5 मिनट बचा है, 9:25 में खत्म है, 11:25 में खत्म है, 5 मिनट से पहले फिर से कॉल आ जाता है, ठीक है। ये कॉल किस लिए? टू एंगेज गवर्नर, 5 मिनट से पहले गवर्नर। तो गवर्नर जो लास्ट में सही डिसीजन लेना थे, प्रॉपरली जो चेकिंग होना था वो कर नहीं पाता है, और ये इंस्ट्रक्ट कर देता है ये जैक्सन के थ्रू में, ये थ्रू स्टीफेंस को, कि स्टीफेंस एग्जाम खत्म हो जाए तो तुम जो है मैक्लेरी को गेट के बाहर छोड़ के आओगे। मैक्लेरी बोलता है ओके, कॉपी वगैरह निकाल लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन वहां पड़ा रहता है, और उसको लॉक कर देते हैं, इवांस पोजीशन में लॉक कर देता है वो, और बिना देखे मैक्लेरी को छोड़ के आ जाता है गेट तक, मेन गेट से बाहर छोड़ के आ जाता है। उसको लगता है कि मैक्लेरी थोड़ा दुबला पतला दिख रहा है, पहले मोटा सा आया तो मोटा लगता है, पतला लग रहा है, हाउ इज पॉसिबल, होता है, हो सकता है मेरे दिखने में खराबी होगी, एंड वो उसको गेट से विदा करके चलाता है। एंड जब उसको उसके उस टाइम चाय पीने का टाइम है, ही टेक टी, और डायरेक्ट आता है, उसको भी एक बीमारी से होती है कि हर चीज भूलता है, बोला मैं लॉक किया कि नहीं, देख जाता हूं। काउंट्स बैक और जब देखता है कि इवांस के चेयर में देयर इज समवन सिटिंग ऑन इवांस चेयर, इवान के चेयर में बैठा है, एंड उसका हेड में पूरा ब्लड भर गया है, और ब्लड जो है ड्रिपिंग इन टू हिज फेस, इवन टू हिज कोट, अपने कोट के ऊपर ब्लड आ रहा है, खून खराब हो गया है, चेहरा नजर नहीं आ रहा है, ये ऐसे गिरा हुआ है, ब्लैंकेट इज टचिंग द ग्राउंड, खिसक गया है आर्म से। पहले एक पल के लिए सोचता है स्टीफेंस की ये इवांस तो नहीं है, लेकिन फिर अच्छे से देखता है, पहचान नहीं पाता कौन से लड़का वैसे कर क्या होता है। यस ओके, सो क्या होता है, लिसन, ये बिकॉज ऑफ ब्लड, जो भी आर्टिफिशियल ब्लड है पता चलेगा, उसका जो छोटे छोटे बाल है चिपक गया होता है, ब्लड कमिंग, उसके बाद जब ये लोग घुसा पहनते हैं, ये हैंकरचीफ, लिसन नोट अगेन, एक हैंकरचीफ उसके सर पे लगा लेता है, और फिर धीरे धीरे धीमे आवाज दिमाग करता है, बोलता है कि उसने मेरे को मार दिया, और वो कहाँ है पता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर के लास्ट पे, लिसन जस्ट ऑन द लास्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, a sheet has been attached, एक प्रिंटर कॉपी है, उसमें पूरा प्लान है, देखो, एंड गवर्नर आता है, देखता है कि प्लान लिखा हुआ है कि एग्जाम के 3 मिनट पहले, एग्जाम के 3 मिनट के पहले मैक्लेरी को मार देना तुम, और निकल जाना, इंस्ट्रक्शन लिखा है उसमें। तो गवर्नर को लगता है कि जो आदमी निकल गया वो इवांस है, और ये मैक्लेरी को इधर मार दिया है, इवांस निकल गया। फिर उसको गाली देता है ये स्टीफेंस को कि तुमने कैसे जाने दिया बिना चेक किए, यू ऑल आर यू टू आर इडियट्स, गाली देता है, और उनको लगता है कि इवांस जो है निकल गया, बट द रियल इवांस इज एक्चुअली सिटिंग ऑन हिज ओन सीट, लेकिन ब्लड लगा दिया है, पहचान भी नहीं पा रहे हैं कि इवांस मैक्लेरी है, ऑलरेडी सेविंग किया हुआ है, एंड दे haven't seen him without beard and mustache for quite long time, चेहरा बदल दिया है, थोड़ा ये अपना टोपी हटा दिया है, जो पहना हुआ तो दिखाया नहीं था, छोटा छोटा कर दिया, खून डाल दिया है, रुमाल डाल दिया है, बोलते हैं मैं जानता हूं मेरे को कुछ नहीं है, डोंट बदर अबाउट मी, जस्ट फॉलो इवांस, किस तरफ गया है मुझे मालूम है, पूरा प्लान चिपका हुआ है, देखो वो अभी एल्सफील्ड की ओर जाएगा, चलो एल्सफील्ड की ओर पीछा करो। ये इनको क्या करता है, कंफ्यूज कर देता है, और ड्यूरिंग दिस कंफ्यूजन गवर्नर also was unable to take right decision, और ठीक ऐसे ही सोचता है क्या करें, एक कार आ जाता है, ठीक है, उसमें डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट, ये उसको कोई बुलाया नहीं, डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट पहुंच जाता है, कार्टर उसका नाम है, कार में आ जाता है, और जेल के सामने गाड़ी खड़ा करके पूछता है ये क्या मैं सुन रहा हूँ, आपने कैसे कि इवांस को भगा दिया, आप कुछ क्या कर रहे हैं, व्हाट्स हैपनिंग। तो घबराया था गवर्नर, इसको सुपरिटेंडेंट कहां से पता चला गया, ये आ गया, खुद आ गया, कार से दौड़ के पूछ रहा है मैं क्या करूं,
तो गवर्नर से एक्चुअली मैक्लेरी जो है, इसको मैक्लेरी बोल रहे हैं, इसको इवांस को पढ़ा है, इसको सब मालूम है और उसमें इंफॉर्मेशन भी है, एयरस्पीड की ओर गया है, आप उसको लेके चले जाइए, आपको दिखा देगा। तो कार में डिटेक्टिव कार्टर क्या बोलता है, रियल इवांस को, जिसको कि मैक्लेरी समझ रहे, आराम से बिठाते हैं और उसको यहां से लेके एयरस्पीड की ओर निकलने की बहाना करते हैं। कहां निकलते हैं पता नहीं, लेकिन इसको लगता है कि गवर्नर को लगता है कि एयरस्पीड में गए हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन लास्ट में लिखा गया था एयरस्पीड को जाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल भी उधर ही है एक्चुअली। लेकिन वो कार में क्या होता है, मस्त सोप होता है, टॉवल होता है, इवांस फ्रेश हो जाता है, चेहरा बदल लेता है, क्योंकि ये भी उन्हीं का आदमी है, डिटेक्टिव सुपर ने फर्जी है। लेकिन इसको लगता है कि दे हैव एक्चुअली मूव एयरस्पीड वे। फिर उसको आगे बोलता है कि इंफॉर्मेशन पढ़ के बोलता है कि एयरस्पीड से वो आगे हेडिंगटन की ओर जाएंगे, ये बताता है कि एयरस्पीड से हेडिंगटन, ये ट्रैकिंग करता है और बीच में एक रेडक्लिफ हॉस्पिटल है। तो इसको लगता है गवर्नर थिंक्स दैट एवरीथिंग इज गोइंग ऑन प्लान, ये लोग एयरस्पीड जाएंगे, फिर आते वक्त रेडक्लिफ हॉस्पिटल में ये हमारा इंजर्ड मैक्लेरी को एडमिट कर देंगे, फिर हेडिंगटन पर पीछा करेंगे और इवांस को पकड़ लेंगे। तो कुछ देर जाता है और उधर से बताते हैं कि हेडिंगटन के राउंड अबाउट से यहाँ एक गोल चक्कर से हमने इवांस को मिस कर दिया, कंफ्यूज करने के लिए कि पता नहीं किधर चला गया। तो उसको डाउट ही लगता है, इसे कैसे मिस कर देंगे, तो स्पॉट नहीं कर पाए, निकल लिए। फिर वो डाउट क्लियर करने के रेडक्लिफ हॉस्पिटल को पहुंचा, फोन करता है कि रेडक्लिफ हॉस्पिटल में कोई मैक्लेरी नाम का कोई आदमी एडमिट हुआ है क्या, इंजर्ड हो गया? तो बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो उधर अपना एम्बुलेंस लेके भी गए थे, बट वी डिडंट सी एनी मैक्लेरी, कोई ऐसा आदमी नहीं है। अब जहां तक हमको इंफॉर्मेशन मिला था कि कोई एडमिट हुआ, लेकिन कोई नहीं, हम वापस है, कोई मैक्लेरी नहीं है। देन दिस पर्सन बिकम्स श्योर कि देयर इज समथिंग शेडी फिशी, कुछ गड़बड़ है। वो बोलता है छोड़ो इधर, इनको बोलता है कि पुलिस स्टेशन जाओ, मिस्टर बेल है उसका हेल्प लो, ठीक है, मिस्टर बेल है उसका हेल्प लो, मदद करो इन दोनों को, स्टीफन सर इसको बोलता है जैक्सन को जाओ। और ये क्या करता है, इसका घर चलता है मैक्लेरी के घर की, कहीं यहाँ इंफॉर्मेशन तो नहीं मिलेगा, या रेडक्लिफ ले गया तो इधर रहना चाहिए। अब जब उसका घर जाता है मैक्लेरी, तो मैक्लेरी हैज बीन टाइड अप ऑन ए चेयर फ्रॉम 8:30, सुबह से उसने उसको बांध दिए हैं। मतलब मैक्लेरी आया ही नहीं, जो मैक्लेरी आया था फर्जी मैक्लेरी था और वो उसके साथ चला गया। और पूछताछ में उसको ही बिकम क्लियर कि सारा प्लान क्या है, दैट मैक्लेरी फर्जी था, डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर फर्जी था, ठीक है, और जिसको इवांस समझ के वो निकल गया, समझ रहे हैं, वो भी उसी का आदमी था, वो फर्जी था, और इवांस को ये खुद छोड़ के आए हैं, वो भी समझ में आ गया। बट लिसन, द बैटल ऑफ विट्स हैज नॉट एंडेड, बैटल ऑफ विट्स एंड नहीं हुआ। वो फिर से देखने लगा, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन आया था, करेक्शन स्लिप आया था, इंडेक्स नंबर, सेंटर कोड, एवरीथिंग ही स्टार्टेड लुकिंग अगेन, क्योंकि बैटल ऑफ विट्स है। एंड देन उसको पता चलता है कि उसमें जो कोड दिया गया है इंडेक्स 313 और सेंटर नंबर 271, ये कोड है। और एक करेक्शन स्लिप में एक फ्रेज आता था, जूम गोल्डन लियोनेड, उसका नाम था गोल्डन लियोनेड, उसको डिकोड करता है ये हमारा गवर्नर, और उसका पता चलता है कि ये होटल का नाम है गोल्डन लायन होटल है, ठीक है, और उसमें 313271 है, ये प्लॉट नंबर है ऑक्सफोर्ड शहर का सर्वे मैप का। तो उसको पता चल जाता है कि ये एक्चुअल चिपिंग नॉर्टन में गोल्डन लाइन में ठहरा है, इवांस डिकोड कर लेता है, इसका भी दिमाग है। एंड इंफॉर्मेशन उसको मिला था करेक्शन स्लिप में, देयर वाज नथिंग रॉन्ग। और बीच में कंफ्यूज करने के लिए एक वर्ड न्यूज़बेरी डाल दिया था, न्यूज़बेरी इधर, तो उसको लगा कि न्यूज़बेरी भी के और भी भाग सकता है, इनको जो पहले बोल दिया न्यूज़बेरी को जाओ, गलत इंफॉर्मेशन उनको हो जाता, तो वो भी खुद कंफ्यूज था। बट लास्ट में क्लियर किया कि चिपिंग नॉर्टन में होटल गोल्डन लाइन में ठहरा है। और स्पीच क्या है, इवांस कहीं घूम फिर के आराम से फ्रेश होकर, जो दाढ़ी लगाया था उसको चिपका दिया था ना, दाढ़ी चिप खोल के, लेकिन उसका फेस जो है सोलन हो गया, इरिटेट हो गया, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है गम लगा दिया था, ठीक है, एडहेसिव लगा दिया था, तो चेहरा थोड़ा लाल हो गया। एनीवे वो फ्रेश होने के बाद आराम से पहुंचता है घूम फिर के चिपिंग नॉर्टन, जैसे द स्टोरी इज गोइंग टू एंड। चिपिंग नॉर्टन में वो रिसेप्शनिस्ट से बात करते हैं, मुस्कुरा के बात करता है, शी आल्सो स्माइल्स बैक, तो उसका भी सब सेटिंग है।
अब आराम से घुसता है अपना होटल का रूम में, बट टू हिज सरप्राइज बेटर ऑफ बोले गवर्नर उसके पहले वहां पहुंच गया कि मैं डिकोड कर लिया हूं। चीफ मिनिस्टर में गवर्नर बैठ गया अपना सेल में, और ये सरप्राइज है। एंड इवांस ऐसे टॉकिंग करता है, मान लो उसने सरेंडर कर दिया है इवांस ने, और बातचीत करते हैं, खुल के बताते हैं कि जो पूरा सीन जो है कैसे हुआ, किस किस के साथ सेटिंग हुआ, हाउ डिड दे मैनेज टू डू ऑल दिस थिंग्स, सारा बात रिवीलेशन होता है। उन्होंने पूछा कि तुम ऐसे इतना हम टाइट सिक्योरिटी के थे, तुमसे लोग कहे लिसन नो इधर, तुम्हारे साथ तो कोई मिलने आ नहीं था, देयर इज नोबडी, तो तुम इतना प्लान कैसे कर लिए, पूछता है फर्स्ट क्वेश्चन। तो बोलता है आपको कैसे पता कि मेरे साथ कोई मिलने नहीं आते, मेरे से बहुत लोग मिले थे। फॉर एग्जांपल जो टेक्निकल तरह से जो जर्मन टीचर आता था उसका साथ सेटिंग था, तो बोलता है वो तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है और वहां से कैसे तुम सेटिंग कर लोगे। ठीक है, तुमने बात करते टेक्निकल कॉलेज से, बट जो टीचर पढ़ाने आता था क्या उसी कॉलेज से आता है, आप श्योर थे, वेरीफाई किए थे, तो वहां ही सेटिंग कर लेते कि ये वाला जो आ रहा था वो नहीं आ रहा, दूसरा फर्जी टीचर आता, वो पूरा इंफॉर्मेशन पढ़ाता क्या करना है, और उसके पहले दिन भी आया था, जैसे नोट लगेगा पहली बात ओके, मान लेते ओके। तो यहाँ पहली गलती, और बाकी सेटिंग ग्रेजर समझाता है। फिर उसको एक चीज समझ नहीं आता है कि ये तुम ये जो ड्रेस था कहाँ से लाए, ये खून कहाँ से लाए, हाँ ये विच वगैरह कहाँ से लाए, तो बताता है कि सब कुछ कैसे आपको बता दें, फिर भी चलिए बता ही देते हैं। बोला कि ये जो ट्यूब लेके आया था इसमें खून था, और खून को क्लॉटिंग ना हो उसके लिए हमने ट्राइसोडियम साइट्रेट का पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिलाए थे, और उसमें पीक का खून था और इंसानी खून था, उसको मिक्स करके थोड़ा बहुत ट्राइसोडियम साइट्रेट दिए थे ताकि वो जमे नहीं, और उसी ट्यूब को मैंने इस्तेमाल किया। पूरा बहुत चक्कर आ गया, क्या हो गया, मैं ये लोग थिंकिंग तो बहुत हायर है, पीक के खून में इंसान का खून मिला के ट्राइसोडियम साइट्रेट देकर उसको एंट्री देते हैं, जिसको कि पाइल से बोल के घुसा देते हैं। तो ऐसा ही हुआ, और बिफोर द क्लोज एग्जामिनेशन जो हमने कॉल आया था 10:20 में आपको एंगेज करने के लिए आया था, और 9:40 में जो कॉल आया था वो किस टाइम एग्जाम खत्म होने के लिए किस टाइम एग्जाम शुरू हो रहा है वो जानने के लिए आया था। सो ये गवर्नर को लगा कि बाप रे कितना दिमाग चलाते हैं, और मैं तो कहाँ रह गया। फिर भी बोलता है बट एवरीथिंग इज ओके, तुमने अपना खेल खेल लिया, बट द स्टोरी इज ओवर नाउ, चैप्टर ओवर नाउ, यू हैव टू सरेंडर। हमारा हिट पुलिस बना रहा है, लोग आते होंगे तुमको हैंडकफ लगा के ले जाएंगे। इवन सो के बोलता है। अब उतरते हैं रिसेप्शनिस्ट के जगह दूसरा रिसेप्शनिस्ट, और रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि वो वैन आ गया है, पुलिस वैन आ गया है, और ये खुश रहता गवर्नर, ठीक है पुलिस बुला दो और इसको हैंडकफ लगा के वैन में डाल दो, दोबारा से जेल चले जाएगा। लिसन, दोबारा से जेल चले जाएगा। और वैन आता है, लेकिन कौन सा वैन आता है? गवर्नर वाला वैन नहीं आता, जो मजिस्ट्रेट का पेपर वाला आया हुआ है पहले, वही वाला वैन, और वही फर्जी पुलिस वही यूनिफॉर्म डाल के आ गए हैं, जिसको हैंडकफ लगा देते हैं, आराम से बिठा देते हैं, एंड द पुलिस वैन स्टार्टेड हॉटलिंग, बहुत तेजी से चलता है, कुछ दूर जाता है, हैंडकफ खोल देते हैं और पूछते हैं कि किधर चलें। तो इवांस बोलता है कि न्यूज़पेपर के तो ऊपर एक डाउट है नहीं, पहले कंफ्यूजन था, अब तो इधर ढूंढने भी नहीं जाएंगे, न्यूज़पेपर पर चलो। लेकिन हैंडओवर करने से बाद एक बार मजा भी लेता है, ये छुट्टी लेता है इवांस विद गवर्नर। गवर्नर तो बोलता है इवांस की अब जर्मन एग्जाम में तो पकड़ा गया, अगले सितंबर से इटालियन वाला एग्जाम तो होगा ना, बोलता है। तो बोलता है एग्जाम तो होगा, लेकिन तुम मेरे जेल में नहीं रहोगे, दूसरे जेल में रहोगे, और वहां जा नहीं पाओगे, ठीक है। पर वो मजा भी लेता है एक्चुअली, और बैटल ऑफ क्विट में जीत भी जाता है, एंड ही वाज सक्सेसफुल इन हिज प्लान, एंड गवर्नर अगेन फेल्स टू टेक दिस पर्सन इन कैप्टिव। सो द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज, ये आया था भी इस एग्जामिनेशन में, each Ivan's prize and O level is a battle of wits, आया था सर। बैटल ऑफ विट्स मतलब दिमाग की लड़ाई था, दिमाग की लड़ाई था, दोनों का दिमाग लगाए थे। ओके, सो एक बार जरूर पढ़ो, एटलीस्ट रीड द समरी, और उसके बाद अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन समझ में आएगा। सो फिर इंटरेस्टिंग, ठीक है।